Okay, so starting with the paragraph 8, the Taj Mahal is situated on the right bank of the Yamuna about 6 miles away from the city of Agra. So इसमें basically यही लिखा है कि जो ताजमहल है वो कहाँ situated है? That is situated on the right bank of the Yamuna. Bank of the Yamuna means that right bank of the river actually, about 6 miles away from the city of Agra. 6 मील दूरी पे आगरा की सिटी से, जो आगरा है उससे 6 मील दूरी पे. It is one of the most famous building in the world. Definitely it's in seven wonders, so it's the most famous building in the world. Its beauty attracts thousands of travelers to our country. जो इसकी ब्यूटी है वो अट्रैक्ट करती है थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवलर्स, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट इसको हमेशा देखने के लिए आते हैं. दे कम एवरी ईयर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू विजिट आगरा. एज आई टोल्ड यू, हज़ारों टूरिस्ट आते हैं इस जगह को देखने के लिए, ताजमहल को देखने के लिए, और वो आते हैं दुनिया के अलग अलग पार्ट से, लाइक बहुत दूर से फॉरेनर्स, ट्रैवलर्स, हर कहीं जाता है ताजमहल को देखने के लिए. Under the clear cloudiness sky, in the light of the moon, the Taj has a beauty that no one can forget. ये एक रात का सीन बताया गया है, जब चांद का सीन, जब चांद आया होता है रात को और बादल होते हैं थोड़े से, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जब आसमान बिल्कुल साफ बादलों के साथ और साथ में जो मून लाइट है, मून की कूल लाइट है, द ताज हैज़ अ ब्यूटी दैट नो वन कैन फॉरगेट. और उस टाइम पे चांद की रोशनी के नीचे ताजमहल की अपनी ही एक खूबसूरती होती है. एंड स्टिल वाटर ऑफ पूल बिफोर इट रिफ्लेक्ट्स द बिल्डिंग्स एंड एड्स टू इट्स ब्यूटी. जो वाटर है उसकी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही एक पूल है, छोटा सा वाटर पूल है. सो उसमें वो बिल्डिंग की रिफ्लेक्शन आती है और वो उससे और भी ब्यूटीफाई हो जाता है और भी सुंदर हो जाता है. ये ताजमहल के पीछे एक स्टोरी है, दैट व्हाई ताजमहल वाज बिल्ट. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट स्टोरी इन ब्रीफ एक्चुअली. सो एम्परर शाहजहां, द ग्रैंडसन ऑफ अकबर, बिल्ट द ताजमहल. जो एम्परर था शाहजहां, उनके ग्रैंडसन ने, अकबर ने ताजमहल बनाया था. He built it in the loving memory of his queen मुमताज महल, whom he loved very much. उसने ताजमहल अपनी वाइफ की मेमोरी में बनाया था. उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी जिसका नाम था मुमताज महल. सो उनकी मेमोरी में उसने ताजमहल बनवाया था. The building stands on a very large quadrangle platform. Quadrangle platform क्या होता है? You know about quadrilateral, so it's just like that only. You can see in the picture. It's in that shape, not proper square, not proper circle or something like that shape. It's a quadrangle platform. So the building stands on a very large quadrangle platform. The quadrangle is 964 feet long. वो 964 feet लंबा है and 329 feet चौड़ा है. 329 feet wide. So we'll just skip to the questions now. Taj Mahal was built by, definitely, शाहजहां. आपने यहाँ पे देखा है एम्परर शाहजहां, द ग्रैंडसन ऑफ अकबर, बिल्ट द ताजमहल. शाहजहां ने अपनी वाइफ के यादों में इस ताजमहल को बनवाया था. सो डेफिनेटली यू हैव जस्ट रेड इन द पैराग्राफ. सो ताजमहल वाज बिल्ट बाय शाहजहां, जो ग्रैंडसन था अकबर का. फर्दर to the next question. Taj Mahal stands on a triangular platform, a large hexagonal platform, the banks of river Ganga, a quadrangle. So you have just read in the line, the building stands on a very large quadrangle platform. So you can just see that yes, Taj Mahal stands on a triangular platform, a large hexagonal platform, the banks of river Ganga, a quadrangle. Definitely a quadrangle. Shah Jahan was the king of Afghanistan, grandson of Jahangir, grandson of Akbar, grandson of Babur. Definitely grandson of Akbar. As you have just read in the line, Emperor Shah Jahan, the grandson of Akbar. On a full moon night, people go to see the Taj Mahal.
People like to take bath in the Yamuna. People go to Delhi. People go to see water of the Yamuna. So on a full moon night, people क्या करने जाते हैं? People definitely go to see the ताजमहल क्योंकि मून की रोशनी में रात को मून की चांदनी में ताजमहल की एक अपनी ही ब्यूटी होती है. According to the people, ताजमहल रात को और भी सुंदर और भी खूबसूरत लगता है. Skipping to the next paragraph. A king had an orchard of fig trees. He loved the fruits so much that he determined to have the trees guarded. एक किंग था जिसके पास एक प्रॉपरली फिग ट्रीज होते हैं. ये इनके ऊपर फिग फ्रूट्स लगते हैं एक्चुअली. सो उसके पास वो पूरा गार्डन था एंड उसको वो फ्रूट इतना पसंद था कि वो चाहता था कि वो उसके अपने फ्रूट्स को बचाने के लिए गार्ड्स के साथ उनको प्रोटेक्ट करे. He appointed a blind man and lame man as guards. उसने एक अंधे इंसान को और लेम इंसान को as guards अपॉइंट कर लिया, रख लिया. The next day the king found that much of the fine fruits had gone and he asked the watchman who had stolen it. So उसने अगले दिन किंग ने देखा कि बहुत से जो अच्छे फ्रूट थे, अच्छे फल थे, वो जा चुके हैं, वो गुम है. एंड इसीलिए उसने वॉचमैन को पूछा कि किसने चोरी की है वो फल. वी डोंट नो, दे रिप्लाइड. उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता. Though both the guards said they had not taken the fruits, the king soon discovered that the blind man had carried the lame man on his shoulder. So अब ये देख आगे लिखा है कि जबकि दोनों गार्ड्स ने कहा था कि उन्होंने फ्रूट्स नहीं लिए हैं, तो किंग ने ये जल्दी डिस्कवर कर लिया कि जो अंधा इंसान है उसने अपने शोल्डर्स पे लेम इंसान को, जो लेम गार्ड था, उसको कैरी किया हुआ था. While the blind man used his legs, the lame man had used his eyes. बेसिकली लेम मैन वो होता है जो प्रॉपरली चल नहीं सकता, जो खड़ा नहीं हो सकता. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि while the blind man used his legs, जो अंधा इंसान था उसने अपनी टांगे यूज करी और जो लेम इंसान था उसने अपनी आंखें यूज करी और अपने हाथ यूज करे. And in this way the figs had been stolen. Both the men were severely punished. तो इसी तरह वो फिग्स जो फ्रूट्स थे उनको चोरी किया गया था गार्ड्स के द्वारा. सो दोनों को बहुत कड़ी सजा मिली इस चीज के लिए क्योंकि उन्होंने चोरी करी थी. So to skip to the questions, the king wanted to have the trees guarded because someone had been stealing the figs. He felt sorry and wanted to find a new job for the lame and blind man. The fruit was valuable. He was afraid someone would steal the fruit. Definitely, इसमें आप देख सकते हो कि उसको कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ उस वो जॉब प्रोवाइड करे लेम और ब्लाइंड मैन को. ना ही उसको ये था कि उसको डर भी नहीं था कि उसको ये भी. एक्चुअली आप ये देख सकते हो आपको सारी ऑप्शंस काइंड ऑफ सेम लगती हैं. व्हेन यू जस्ट डू कॉम्प्रीहेंशंस तो ऐसा होता है कि यू जस्ट सी टू इट कि आपको सारी ऑप्शंस काइंड ऑफ सेम लगती हैं. So just to save from that thing, what you can do is you can just refer to the paragraph. यहाँ पे लिखा है the king wanted to have the trees guarded because someone had been stealing the figs. He felt sorry and wanted to find a new job for the lame and blind man. So this option has been cut क्योंकि ये तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है. You can read in the paragraph only. And then the fruit was valuable. You can just see that it's not like mentioned properly कि हाँ fruit valuable था या ऐसा कुछ. And further, fourth option है he was afraid that someone would steal the fruit. अब इसमें आप देख सकते हैं someone had been stealing the figs. ऐसा नहीं था क्योंकि कोई उन फिग्स को चोरी नहीं कर रहा था उस टाइम पे. उसको बस ये था कि कोई उसको चोरी कर ना ले क्योंकि उसको वो फ्रूट्स बहुत पसंद थे. सो उस टाइम कोई चोरी नहीं कर रहा था, बस उसको डर था. So he was afraid someone would steal the fruit. So this is how you can find the answers from the comprehension, and it's written in the very first line. A king had an orchard of fig trees. He loved the fruit so much that he determined to have the trees guarded. So इसमें से कुछ नहीं लिखा है कि he was like figs were stolen by someone or something like that. वो स्टोरी बाद में शुरू होती है जब गार्ड्स को वो अपॉइंट कर लेता है. So such kind of options are provided so that you get confused. So you don't have to get confused actually. When the king found that many of the fine fruit were missing,
जब किंग को पता लगा कि काफी अच्छे जो फ्रूट्स थे उसमें से वो मिसिंग थे, he asked who had stolen it. He guarded the fruit trees himself. He asked two men to watch over them. He punished both the men. So definitely he asked who had stolen it. You can just see that उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने खुद गार्ड करना नहीं शुरू कर दिया, उसने खुद प्रोटेक्ट करना नहीं शुरू कर दिया, उसने दोनों लड़कों को, जो दोनों मेन थे गार्ड से, उनको ये भी नहीं कहा कि तुम इन फ्रूट्स के को देखो कि कोई चोरी ना कर जाए, क्योंकि ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी एंड पनिशमेंट उसने दी थी, लेकिन इस केस से पहले यू कैन जस्ट सी दैट उसने पहले उनको यही पूछा कि फ्रूट कहाँ गए. ही आस्क्ड हु हैड स्टोलन इट. So you can just see in this line. The next day, the king found that much of the fine fruits had gone, and he asked the watchman who had stolen it. We don't know. So you can just see that उन्होंने सबसे पहले यही question पूछा कि he asked who had stolen it. So option A is the right option. The blind man and the lame man lied because they had not been good watchmen. They thought the king would not discover the theft. They thought the king would never discover how they had stolen the fruit. Third and then fourth, they feared the king. So आप देख सकते हो कि बेसिकली स्टोरी में यही बताया गया है कि जो ब्लाइंड मैन था और लेम मैन था उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चोरी का किंग को पता नहीं लगेगा, क्योंकि किंग के अकॉर्डिंगली एक अंधा है और एक खड़ा नहीं हो सकता प्रॉपरली, उसकी लेग्स में काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, सो चोरी कैसे करेंगे ये दोनों. सो यू कैन जस्ट सी दैट उनको लगा था कि किंग को डिस्कवर नहीं कर सकता वो इस चीज को, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट फर्स्ट ऑप्शन. दे हैड नॉट बीन अ गुड वॉचमैन. दे थॉट द किंग वुड नॉट डिस्कवर द थेफ्ट एंड दे फेयर्ड द किंग. सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है. It's the third option. They thought the king would never discover how they had stolen the fruit. And then you can see in the paragraph that it's written that after that the king discovered that while the blind man used his legs, the lame man has used his eyes and hands, and in this way the figs had been stolen. Both the men were severely punished. Further, the blind man and the lame man lied. Okay, we have done this. The figs were stolen for their values by thieves, by the king's men, by those who had to guard them. डेफिनेटली अब आप इस पैराग्राफ में देख सकते हो कि इट्स ऑप्शन डी, क्योंकि फिक्स को चोरी उन्होंने किया था जो उनको किंग ने अपॉइंट किया था गार्ड करने के लिए, फ्रूट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए. उन्होंने, जो ब्लाइंड मैन था और लेम मैन था, उन्होंने ही फिक्स को चोरी किया था. Further, we'll just go to the paragraph 10. The duck's feathers. Okay. The duck's feathers are surprisingly dry enough, though they stay so long in the water. So जो डक होते हैं, जो उनके फेदर्स होते हैं, वो सूखे रहते हैं, जबकि वो सारा टाइम, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्टे इन वाटर, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पानी में रहते हैं, स्टिल उनके जो फेदर्स होते हैं वो ड्राई रहते हैं. दे कैन स्विम फॉर आवर्स, diving into the water again and again, but keep themselves dry. वो घंटों तक स्विमिंग कर सकते हैं और पानी में बार बार डुबकियां लगा सकते हैं, बट ये ध्यान में रखते हुए कि वो ड्राई हैं एक्चुअली. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस? तो वो बोलता है कि इसके पीछे सीक्रेट क्या है. डेफिनेटली वो सारा टाइम पानी में रहते हैं और फिर भी उनके फेदर्स ड्राई हैं, सो इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है. At the base of the bird's tail, there is a small oil organ, but it is well developed in water birds. ओके, इसके पीछे सीक्रेट ये है कि जो बर्ड्स की टेल होती है, बर्ड्स की टेल, जो उसका बर्ड्स का बेस होता है, एट द जस्ट बेस ऑफ द टेल देयर इज स्मॉल ऑयल ऑर्गन. कुछ ऑयल सिक्रीट करने वाला, तेल सिक्रीट करने वाला ऑर्गन होता है, बट इट इज वेल डेवलप्ड इन वाटर बर्ड्स. सो वो एक प्रॉपरली वेल डेवलप्ड ऑर्गन होता है वाटर बर्ड्स में. जो बर्ड्स स्पेशली वाटर में जीते हैं, मोस्टली वाटर में रहते हैं, उन बर्ड्स के लिए स्पेशली ये डेवलप्ड ऑर्गन होता है. बर्ड्स डू नॉट हैव ऑर्गन्स फॉर स्वेट. सो आप ये देख सकते हैं, they have just mentioned first of all that they are really dry even after staying in the water for so long.
So birds do not have organs for sweat. जो birds हैं उनको कभी भी पसीना नहीं आता क्योंकि उनके पास वो पसीना सिक्रीट करने के लिए वो organs ही नहीं होते. So when they don't have the particular organ for doing a process, तो उनको इसीलिए पसीना नहीं आता. And the basic reason, basic secret behind this is कि उनकी tail पे, birds की tail पे एक small oil organ होता है जो कि बहुत well developed होता है according to their birds, like according to their bodies, and it's already developed in water birds. So just skipping to the questions, this passage is about ducks, sweat organs, oily feathers, oil organs, secret of keeping dry. So अब आप देख सकते हैं you are just getting confused कि इसमें तो हाँ sweat organs के बारे में बात की गई है, oily organs के oily feathers के बारे में बात की गई है, oil organs के बारे में बात की गई है, secret of keeping dry. So इस केस में जब आपको वो ऐसा कुछ पूछे कि पैसेजेस अबाउट डक्स, सो आपको इस क्वेश्चन में ये फोकस करना है कि पैराग्राफ में बेसिकली किस चीज लाइक पूरा पैराग्राफ किस चीज पे बेस्ड है. जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब वो पूछते हैं कि पैराग्राफ पैसेज किस पे बेस्ड है, सो जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई होती है आपको उस टॉपिक पे फोकस करना है. अब इसमें सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हुई है पैराग्राफ में, बट यू हैव टू फोकस ऑन द मोस्ट टॉपिक जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ है. सो यू कैन जस्ट सी जो मेन टॉपिक है पैराग्राफ में, दैट इज सीक्रेट ऑफ कीपिंग ड्राई. कि जो बात कहाँ से शुरू हुई पैराग्राफ की, the duck's feathers are surprisingly dry even though they stay so long in the water. So जो सीक्रेट है हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, एंड जब हम उस सीक्रेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो और चीज़ों के बारे में पता लग रहा है कि उनके पास स्मॉल ऑयल ऑर्गन है और उनके पास स्वेट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गन्स नहीं होते हैं. So you can just see that this passage is about ducks, secret of keeping dry. Just skipping to the further second question, the special quality of ducks is that they can swim very far, swim very fast, dive many times, remain dry. तो जो special quality है ducks की वो क्या है कि that they can swim very far, वो बहुत दूर तक swim कर सकते हैं, they can swim very fast, बहुत तेज लाइक बहुत जल्दी स्विम कर सकते हैं, या फिर बहुत बार डुबकियां लगा सकते हैं, या फिर वो सूखे रह सकते हैं. सो इट्स डेफिनेटली डी ऑप्शन कि वो ज्यादा देर लाइक हमेशा सूखे रह सकते हैं. एंड दिस इज व्हाट पैरा इज अबाउट. जो हम बेसिक इसमें जिसमें हैरानी वाली बात, यू कैन जस्ट सी द डक्स फेदर्स आर सरप्राइजिंगली ड्राई. It means this is a special quality of ducks we are talking about here. So you can just see that they remain dry. This is the main question here. So option is D. The oil organ is on the duck's back, tail, feathers, feet. So इसके लिए just directly इसका आंसर है tail, क्योंकि properly यहाँ पे साफ साफ लिखा है. जब कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर डायरेक्टली आपको पैराग्राफ से बिल्कुल रिटर्न मिल जाता है, सो वो आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि यस यू हैव क्रिएटेड, यू हैव डन द राइट क्वेश्चन, यू हैव डन द राइट आंसर एक्चुअली. सो इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड, जब आप कॉम्प्रिहेंशंस कर रहे हो सो सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड कर लो. उससे क्या होता है, जब आप पैराग्राफ रीड करते हो उसके बाद आपके दिमाग में ये चीज रहती है कि यस कौन कौन से क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं. जब आपको ये पता है कि नीचे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसके बाद आप पैराग्राफ रीड कर रहे हो, तो जब भी आप पैराग्राफ रीड करोगे आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइनिंग या आंसर मार्क कर लोगे. उससे ये होता है कि आप पहले ही आंसर इजीली फाइंड कर सकते हो. सो ऑलवेज इट्स अ सजेशन दैट आप पहले क्वेश्चंस रीड करो फिर आप पैराग्राफ रीड करो. जब आप पैराग्राफ रीड करोगे आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलते जाएंगे. एंड बाय चांस इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द आंसर और इफ यू आर गेटिंग सो मच कंफ्यूज्ड, सो जस्ट उस चीज पे फोकस करो जिसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है पैराग्राफ में, जिसके बारे में एक्चुअली पैराग्राफ में ज्यादा डिस्कशन की गई है. ओके, जिस पे एक्चुअली पैरा बेस्ड है. So skipping to the fourth question, so third question's answer is D, that is tail. What is the secret of this?
दिस हेयर रेफर्स टू द डक्स। अब ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि when this that and those these kinds of things are told in a, like asked in the questions, then you have to just skip to the paragraph कि this word कहाँ पर use हुआ था. What is the secret of this? This here refers to the ducks swimming, diving many times, keeping dry, remaining in water for long. So अब आप हम ढूंढेंगे कि दिस वर्ड कहाँ पे बेसिकली यूज हुआ है. सो इन द पैराग्राफ यू कैन जस्ट सी दैट उन्होंने एक प्रॉपरली हमें लाइन प्रोवाइड की है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस. ओके, सो अब हमने इससे पहले वाली लाइन पढ़ेंगे. दे कैन स्विम फॉर आवर्स डाइविंग इनटू द वाटर अगेन एंड अगेन बट कीप देमसेल्व्स ड्राई. सो सीक्रेट ऑफ दिस इसमें है जो रिमेनिंग इन द वाटर फॉर सो लॉन्ग बट कीपिंग देम ड्राई. सो मेन रीजन क्या है सीक्रेट? दैट इज कीपिंग देम ड्राई, कीपिंग ड्राई. सो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. That is, they are able to keep them dry. Okay, so we'll just go to the fifth question. This is oil organ. Okay, so options are the not developed in all birds, not formed in all ducks, not found in all birds, well developed only in ducks. So this oil organ is, options are not developed in all birds. So definitely not. उन्होंने यहाँ पर एक line mention की है, like you have to read the second last line for this. At the base of the bird's tail there is a small oil organ, but it is well developed in water birds. So इस लाइन से हमें ऑटोमेटिकली फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है. दैट इज ए ऑप्शन. दिस ऑयल ऑर्गन इज नॉट डेवलप्ड इन ऑल बर्ड्स. वो क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि दैट इज सिर्फ ये वेल डेवलप्ड होता है वाटर बर्ड्स में. हर एक बर्ड में ये चीज नहीं होती है. बर्ड्स डू नॉट हैव ऑर्गन्स फॉर स्वेट. हर एक बर्ड में ये चीज नहीं होती है. जो ऑयल है उनकी टेल पे वो हर एक बर्ड की टेल पे नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट इट इज ऑलवेज इन द टेल ऑफ दैट, एट द बेस ऑफ द टेल ऑफ अ वाटर बर्ड. इसीलिए ये हैरानी की बात है कि वो पानी में हर टाइम रहते हैं, उनको वाटर बर्ड्स कहते हैं, एंड दे स्टे फॉर सो लॉन्ग इन द वाटर बट स्टिल दे आर ड्राई. So this is the reason behind that, as they are having a unique organ with them, which is helping them to be dry actually. So you can just see that. So the right option is not developed in all birds. It's just developed in water birds. So that is all about the comprehension. You just always have to focus on the thing which is mostly given in the paragraph. Like if it's mentioned that what is the passage about, when this kind of questions are asked, you just have to refer to the paragraph again so that you can just see to it कि किस बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुई है. जब किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुई हो तो पैसेज इज बेस्ड ऑन दैट. और कई बार आपको कॉम्प्रिहेंशन में पूछ लेते हैं कि टाइटल क्या है, लाइक मेन जिस्ट क्या है इस पैराग्राफ का, तो उसमें भी आपको सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना है जो मेनली डिस्कस की गई है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर.